नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 7 यानी कि 7वां भाग इसका लेकर आया हूँ। साथ में 12 और 13 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। आज 2 दिन के करंट अफेयर्स इसलिए लाना पड़े क्योंकि हमने कल सितंबर माह के करंट अफेयर्स डिस्कस करे थे MCQ फॉर्म में। इसी कारण आज मुझे बैंकिंग अवेयरनेस के साथ 2 दिन के करंट अफेयर्स लाने पड़े। तो दोस्तों शुरू करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 7। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और डिजिटल बैंकिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक्स हैं। मैं इनका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करूँगा क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसे इंग्लिश में ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। A document consisting of a contract guaranteeing the payment of a specific amount of money either on demand or at a set time with the payer name on the document is known as। तो आंसर बनेगा हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ रिलेटिंग टू promissory note, bill of exchange and checks are defined and amended under which act? Answer is Negotiable Instrument Act 1881. Next question. A financial instrument in writing consists containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or to the bearer of the instrument is called as promissory note. Next question. Who are the parties of bill of exchange? Drawee, drawer, payee. Answer is all of the above. Next question. Which is the only instrument that can be payable to bearer on demand? Answer is check. Next question is a bank issues a dash to client directing another bank or one of its own branches to pay a certain sum to the specific party. Answer is demand draft. Next question. A person who is authorized to sign a negotiable security in order to transfer ownership from one party to another or to approve the terms and condition of a contract is known as? Answer is endorser. Next question. What can be two types of an endorsement? Answer is endorsement in bank and endorsement in full. Next question. What is the bill receivable account? Real account. At the time of endorsement of a bill, the drawer credits bill receivable account. Next question. A bill of exchange includes an order to pay. Next question. A check is defined under which act? Negotiable Instrument Act 1881. A check is defined under Section 6 of Negotiable Instrument Act 1881. Next question. A person who signed on the face of the check is known as drawer. Answer is drawer. Next question. Section 4 of the Negotiable Instrument Act deals with promissory notes. Next question. A promissory note is an unconditional promise to pay. Next. In case of promissory notes there are two parties. ठीक है, promissory notes में कितनी दो पार्टीज होती हैं? ठीक है, ये याद रखना, promissory notes में दो पार्टीज होती हैं।
The check which has completed 3 months from its date of issue is known as stale check. ठीक है, यानी एक्सपायर जो चेक हो चुका है, एक्सपायर हो गया वो चेक कौन सा, स्टेल चेक कहलाएगा. ये याद रखना है. ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जो चेक एक्सपायर हो चुका है वो कौन सा कहलाता है, स्टेल चेक कहलाता है. या 3 महीने जिसने पूरे कर लिए हैं वो स्टेल चेक कहलाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द फिजिकल चेक issued by a drawer at some points by the presenting bank. The answer is truncation. Next, a check which is payable to a person whosoever bears it is known as. Your answer is bearer's check. क्या, bearer's check. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिजिटल बैंकिंग सब शुरू हो गया है. UPI स्टैंड्स फॉर. UPI पेमेंट इंटरफेस. UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज सपोर्टेड बाय भीम. आंसर इज सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट. A and B. Next question. The upper limit per UPI transaction is 1 lakh. ठीक है, अपर लिमिट कितनी है यूपीआई में, यानी कि पर ट्रांजेक्शन की, एक ट्रांजेक्शन की 1 लाख रुपए. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2FA फैसिलिटी इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी फीचर. 2FA क्या है, सिक्योरिटी फीचर है, ये याद रखना है. नेक्स्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू सर्व द पर्पस ऑफ वन कार्ड फॉर ऑल पर्पस. रुपे कॉन्टैक्टलेस. विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू सर्व द पर्पस ऑफ वन कार्ड फॉर ऑल पर्पस. तो रुपे कॉन्टैक्टलेस, ये याद रखना है. नेक्स्ट. भीम स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रुपे इज ब्रांड ऑफ NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट. नेम द प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय NPCI फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन. आंसर इज फास्टैग. क्या है आंसर, फास्टैग. MMID स्टैंड्स फॉर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर. मोबाइल मनी आइडेंटिफायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द NPCI ड्रिवन सिस्टम फॉर बिल पेमेंट. आंसर इज भारत बिल पे. एनी UPI ऐप विल फेच योर बैंक डिटेल्स यूजिंग योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. कोई भी UPI का जो ऐप होगा आपकी बैंक की डिटेल किसके द्वारा ले लेता है, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके द्वारा. अब मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, आपने मोबाइल नंबर खरीदा होगा, किस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा, आधार कार्ड का. ठीक है, आधार कार्ड आपका बैंक में भी लगा है, साथ में जो आपने पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर लगवाया उससे भी बना हुआ है. ठीक है, तो आपकी पूरी जो डिटेल होती है, आपके परमानेंट एक जो मोबाइल नंबर होगा, 2 यूज़ करते होंगे, एक परमानेंट होगा और एक टेम्पररी होगा. तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उससे कोई भी UPI आपके बैंक की डिटेल हासिल कर लेता है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन रुपे कॉन्टैक्टलेस. Q स्पार्क. Q स्पार्क याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT सिस्टम. देयर इज नो लिमिट ऑन ट्रांजेक्शन थ्रू NEFT. ये तो गलत है. NEFT माफ़ कीजिएगा, तो सही है. NEFT ऑपरेट्स इन आवरली बैचेस. तो ये गलत है. सेकेंड वाला आपका आंसर बनेगा. NEFT ऑपरेट्स इन आवरली बैचेस, ये गलत है. ठीक है. नेक्स्ट. वन कैन यूज डैश विच UPI एप्लीकेशन ऑन द सेम मोबाइल. मोर देन वन. ठीक है, वन कैन यूज़ मोर देन वन UPI एप्लीकेशन ऑन द सेम मोबाइल. एक से ज़्यादा
यूपीआई एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एसबीआई का अलग हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया का अलग हो सकता है, आईसीआईसीआई का अलग हो सकता है, ये सारे अलग हो सकते हैं। डैश इज ओनली ट्रांसफर mechanism which transfers money between different bank account and does not hold money. Answer is Bhim. Okay, next question. Which of the following is not true about National Automated Clearing House? ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के बारे में क्या गलत है। It is a centralized clearing system launched by the NPCI and a National Payment Corporation of India. Yes. It aims to replace and consolidate multiple existing electronic clearing service system across India. ये भी सही है। NACH NAACH platform has been created to replace the electronic clearing service system. बिल्कुल ये भी सही है, थर्ड वाला भी। NACH बोलते हैं इसको, NACH have the same day presentation and settlement इंक्लूडिंग रिटर्न्स प्रोसेस। ये भी सही है, था ने चार पाँचों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM विच कैन बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली बाय विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन नॉन एज द टॉकिंग ATM बोलता हुआ ATM यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स launch its DG Bank, India's first mobile only bank in 2016. DBS Bank. कौन सा? DBS Bank. Next question. SPay India's first mobile app for merchants to accept payment on mobile phone through multiple digital modes belonging to which bank? आपका आंसर बनता है इसके अंदर ICICI Bank. Next, which of the following banks create history in August 2050 by launching India's first mobile app for bank account opening? Answer is Federal Bank. ठीक है, Federal Bank. Which of the following bank create history in August 2015 launching India's first mobile app for banking account opening? यानी कि पहला बैंक कौन सा था जिसने बैंक्स अकाउंट ओपन करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करा था 2015 में? तो याद रखना फेडरल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ये मैं दोनों में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पॉल मिलग्रोम रॉबर्ट विल्सन ने इकोनॉमिक साइंस में क्या जीता है? नोबेल प्राइज़ जीता है। ठीक है, काय में जीता है? इकोनॉमिक साइंस में। क्यों जीता है? देखिए, पॉल मिलोग्राम रॉबर्ट विल्सन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द नोबेल प्राइज 2020 इकोनॉमिक साइंस फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। ठीक है, अब रॉबर्ट मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को नीलामी के सिद्धांत में सुधार के लिए, ठीक है, एवं नीलामी प्रारूप के आविष्कार हेतु इकोनॉमिक साइंस में क्या मिला है? 2020 के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। बोथ इकोनॉमिस्ट यूज देयर insight to design new auction format for goods and service that are difficult to sell in traditional way, such as a radio frequency is a technology known as severing risk bank price in economic science in memory of अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, दोनों अर्थशास्त्रियों को है ना गुड्स एंड सर्विस के लिए नीलामी स्वरूपों को डिज़ाइन करने हेतु और अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग किया जिसे पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है। इसे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवरिंग रिस्क बैंक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अब आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, सेवरिंग रिस्क बैंक अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? कौन सा अवार्ड? सेवरिंग रिस्क बैंक अवार्ड। तो आपको ये याद रखना है कि पॉल मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को ही दिया गया है, जो कि नोबेल प्राइज़ है किसका? इकोनॉमिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 8 इंडियन बीचेस गॉट इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन।
8 भारतीय समुद्र तटों को मिला इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट अनाउंस 8 बीचेस ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड विद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय एन इंटरनेशनल ज्यूरी comprising of eminent members UNEP, UNWTO, FEC and IUCN। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की कि भारत के 8 समुद्री तटों को एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, जिसके प्रमुख सदस्य UNEP, UNWTO, FEE और IUCN शामिल हैं। कौन कौन सी इलाके हैं? ठीक है। सबसे पहले शिवराजपुर गुजरात, द्वारका, ठीक है, घोगला दीव में है, दमन दीव में है, कासरकोड कहाँ पर है, और पदुबिंदरी कर्नाटक में, कप्पड़ केरला, रुशिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन, ये है गोल्डन बीच का नाम है गोल्डन बीच, पुरी ओडिशा में, और राधानगर आंध्र प्रदेश, माफ़ करिएगा अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन दैट रिसीव दिस फीट इन जस्ट 2 years टाइम। भारत एशिया है ना, एशिया पैसिफिक का पहला देश बन गया जिसने केवल 2 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल कर ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे बिंग ऑब्जर्व, ये माफ़ कीजिएगा 12 अक्टूबर आएगा। ठीक है। विश्व गठिया रोग दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। बस इतना याद रखना है। इसकी थीम क्या थी? टाइम टू वर्क। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे का मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, इसकी थीम थी टाइम टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शटलर चेतन आनंद नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म। ठीक है। शटलर चेतन आनंद को बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल सरीन विंस चेस कम 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप। निहाल सरीन ने chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन यही आएगा, निहाल सरीन किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है शतरंज से है। और चेतन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है शटलर हैं वो। क्या है? शटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य वेंकटेश्वरन बिकम ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे। चैतन्य वेंकटेश्वर एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। चैतन्य इज द 4th यंग वुमन टू टेक ओवर एज द ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन एन एनुअल कॉम्पिटिशन रन बाय द UK मिशन इन सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर उन्हें यानी कि चैतन्य वेंकटेश्वर को क्या बनाया? ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया एक दिन के लिए। वो चौथी युवा महिला बनी इस पद पर पाने वाली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PM रिलीज 100 रुपीज़ कॉइन ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजमाता विजया राजे सिंधिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर 100 रुपये का सिक्का जारी करा। ठीक है। महारानी विजया राजे सिंधिया की ये 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसके मौके पर क्या हुआ कि PM मोदी ने कोमेमोरेटिव कॉइन 100 रुपये का जारी करा। ठीक है। शी वॉज एन एक्टिव मेंबर एंड ऑफ द जनसंघ एंड द को फाउंडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी थी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है। और उनमें से एक को फाउंडर थी कौन? राजमाता विजया राजे सिंधिया। और साथ में लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी ये को फाउंडर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर कार्लटन चैपमैन पास्ड अवे। ठीक है। पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कार्लटन चैपमैन का क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है। Carlton Chapman won 14 titles including the first edition of the National Football League along with I.M. Vijayan and Baichung Bhutia. He also won gold at 1997 South Asian Football Federation. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
13 अक्टूबर, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 13 अक्टूबर, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1989। पहली बार कब मनाया गया था इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन? 1989 में, ठीक है। इसकी इस साल की थीम क्या थी ये याद रखना है, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, ठीक है, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। 13 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक लॉस। बस इतना याद रखना, डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। थीम क्या थी? डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, याद रखना है। लॉस एंजलिस लेकर्स विन 17th NBA चैम्पियनशिप। लॉस एंजलिस लेकर्स ने 17वीं NBA चैम्पियनशिप जीती। बस इतना याद रखना है कि NBA, ठीक है, NBA चैम्पियनशिप किसने जीती? लॉस एंजलिस लेकर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक 129 इन ऑक्सफैम इंटरनेशनल CRI इंडेक्स 2020। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के CRI इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 129वीं रही, ठीक है। लोवेस्ट रैंक किसकी रही यहाँ पर? साउथ सूडान की। किसकी? साउथ सूडान की। किस आधार पर होता है ये? 3 पिलर्स होते हैं, पब्लिक सर्विस पिलर, प्रोग्रेसिव टैक्स पिलर और वर्कर्स राइट्स पिलर्स, ठीक है। भारत की रैंक याद रखना है आपको, कितनी रही? 129। बाकी आपको याद नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर CM चांग पास्ट अवे। नागालैंड के पर्यावरण मंत्री CM चांग का निधन हो गया, ठीक है। CM चांग जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के मंत्री थे? तो आपका आंसर बनेगा नागालैंड। अगला सवाल है आपका, NIT त्रिची साइंड MOU विद CDEC पुणे फॉर इंस्टॉलिंग सुपर कंप्यूटर। NIT त्रिची ने सुपर कंप्यूटर स्थापित करने हेतु CDEC पुणे के साथ समझौता किया है। बस क्वेश्चन इतना ही आएगा, अभी हाल ही में NIT त्रिची, इसे तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं, उसने किस कंपनी के साथ सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल करने के लिए करार करा है या MOU करा है? तो आपको याद रखना है CDEC के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश टू गेट इट्स ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में बनेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा, अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस शहर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? आपका आंसर बनेगा होलोंगी। अगला सवाल है, एवा मूर्तो टुक चार्ज एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फिनलैंड फॉर अ डे, ठीक है। एवा मूर्तो ने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, ठीक है। एवा मूर्तो अज्यूम चार्ज एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड फॉर अ 1 डे अंडर द गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम, ठीक है। गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत एवा मूर्ते 16 वर्षीय बालिका है, उसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करा। गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ द UN इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स टू रेज मोर अवेयरनेस अबाउट द जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम को, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने हेतु UN अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड साना मरीन हैंडेड ओवर हर पावर टू एवा मूर्तो फॉर अ डे, ठीक है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मरीन ने एक दिन के लिए अपनी शक्ति एवा मूर्तो को सौंप दी, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी, और करेंसी है यूरो, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है ना? सॉली निनिस्तो। अगला सवाल आपका बनता है, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस 73,000 करोड़ मेजर टू स्टिमुलेट कंज्यूमर स्पेंडिंग। उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने हेतु 73,000 करोड़ रुपए के उपायों की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। क्वेश्चन यही आएगा, अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने
कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर कितना यानी कि को यानी इनका प्रोत्साहित उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए कितना बजट का अलोकेशन किया है या घोषणा की है, तो 73,000 करोड़ या फंड की घोषणा करी है, जो भी याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर रिलीज ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, माफ कीजिएगा, बाला साहेब विखे पाटिल। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू कैंपस एंड बिल्डिंग ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इनोग्रेटेड। ठीक है, पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए परिसर और भवनों का उद्घाटन किया। ठीक है, किसने करा है ये हमारे शिक्षा मंत्री देश के डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल, उन्होंने करा है। ठीक है, इट इज़ डेडिकेट टू जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। यह जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान को समर्पित है। ठीक है, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 203.78 करोड़। इसका निर्माण 203 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, लगभग 203 करोड़ की लागत से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ADB signed MOU with India to develop Rajasthan secondary towns. सॉरी, टी छुप गया यहाँ पर। ADB signed MOU with India to develop Rajasthan secondary towns. ADB ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों को विकसित करने हेतु भारत सरकार के साथ क्या करा है, समझौता करा है। ठीक है, ADB ने कितना साइन करा, $300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट करा है भारत सरकार के साथ टू फाइनेंस इन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस इन द 14 सेकेंडरी टाउन्स ऑफ राजस्थान। कितने शहर लिए जाएंगे, 14 माध्यमिक शहर लिए जाएंगे, कहाँ के, राजस्थान के। उसके लिए कितना, 300 मिलियन का ये करार है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।